Good morning, students. Welcome to online political science class. Again, we are taking up another issue on this chapter, that is chapter 6, International Organization. So far, we have finished up about the UN, the structures of UN, the organs of UN. We have seen the various specialized agencies that work for the UN or under the UN. Okay, so UN is such an intergovernmental organization which exists in the world for various purposes. Okay, so the organs, the 6 organs. Okay, from the 6 organs, trusteeship is no more now. It was recently suspended now. But what about the other organs like General Assembly, Security Council, and all these? They are working very hard. They are working very hard to make some of the things normalize in this world. See, students, today we are facing lots of problems in the world. Okay, first of all, we have to think that if UN is not there, okay, who should control the whole of the states? Okay, actually the UN was made by the states only. Okay, it was made by some of the states who have realized that to prevent war, to prevent conflict in the world, some of the type of things or some of the organizations are necessary in the world, and for these reasons they have created this UN. As we all know that League of Nations has proved failure. Okay, so now this UN is a large intergovernmental organization which consists of 193 members. So many issues in the world still exist. Okay, like there are underdevelopment issues, there are poverty issues, there are economic backwardness, then there are other developmental issues, then there are infrastructural issues, then there are other type of issues like child labor issues, human rights problems, then ethnic civil war, ethnic war that is going on in different countries of the world today, as we are witnessing. Okay, Israel, Palestine, and all this happening only. Then we have other problems like terrorist issues. Okay, environmental problems. So many things are being faced by the world today. Okay, so as the world is changing, as the technological things are developing, वर्ल्ड इज बिकमिंग इन ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. ओके, सारा जो चीज है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी में आके अपने आप ढलते जा रहा है. ओके, अपने आप ढलते जा रहा है. एंड पीपुल आर नाउ इन मच ऑफ प्रॉब्लम. ओके, बहुत सारा जगह में बहुत सारा जो लोग हैं जो दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. यू नो स्टूडेंट्स, many of the people in the world are not having their own basic rights also. ये जो हम लोग बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो हम बोलते हैं, these things are not available in the world for many peoples. Do you remember the Rohingyas? Okay, the Myanmar issue. Okay, the last year we have witnessed this large number of Rohingyas who were being ousted out from Myanmar, and all these issues happened. So these people are being also struggling, facing for those human rights, their rights, their basic rights in their country, which government is not willing to offer them. Okay, इस तरह से डिफरेंट कंट्री डिफरेंट प्रॉब्लम में जूझते जा रहा है. और अगर यूएन ना हो तो यूएन ना होगा तो क्या होगा. और यूएन कहीं कहीं जगह पे फिर देखा जाता है कि वो अपना पूरा कोई उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह से उसको करना चाहिए था. ओके, तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने बहुत सारा रिफॉर्म के बारे में बोला है यूएन में. ओके, देखो जो यूएन या फिर वर्ल्ड का जो सिचुएशन है, ओके, वो चेंज हो गया आफ्टर 1991. मेनी ऑफ द थिंग्स हैज बीन चेंज्ड इन द वर्ल्ड. ओके, 1945 हमने देखा, 1945 to 1991 जो कोल्ड वॉर एरा में गुजरते जा रहा था. ओके, द होल वर्ल्ड हैज बीन फेसिंग lots of problems due to the clashes between the two superpowers. And when in 1991 one of the major superpower died, that is USSR or Soviet Union. Okay, then many things has been changed in this world. Okay, और बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट हुआ, न्यू टाइप का थिंग्स आया है देखा जाता है.
तो ये सब कुछ होते होते बहुत सारा रिफॉर्म्स के बारे में, बहुत सारा चीज़ों के बारे में बोला गया है. ओके, सो मेनी क्रिटिक्स हैव told, many critics have analyzed, okay, that the structures of the UN should be changed some way or the other as the world is changing or the world has changed after 1991. तो आज तो हम जो एरिया को पकड़ने वाले हैं और हम जो लेसन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंड दैट एरिया इज व्हाट, दैट एरिया इज रिफॉर्म ऑफ UN आफ्टर कोल्ड वॉर. ओके, कोल्ड वॉर के बाद में कौन सा रिफॉर्म नेसेसरी लगा बहुत सारे एक्सपर्ट्स को, बहुत सारे क्रिटिक्स को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो मैंने ये डिफरेंट सेक्शन में इसको भाग कर दिया. रिफॉर्म्स ऑफ UN. ओके, तो जो मेजर रिफॉर्म, बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहिए UN में, क्योंकि UN इज ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बट जो मेजर रिफॉर्म्स के बारे में क्रिटिक्स ने बोला. ओके, वन इज व्हाट, इंक्रीज इन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया इसको थोड़ा सा. तो we all know that there are 5 permanent members and 10 non-permanent members. Okay, तो these 15 members are there. जो 10 मेंबर जो है they are rotating. Okay, जिसकी 193 मेंबर्स है ना ऑलरेडी. तो 193 मेंबर्स में क्या होता है, वो जो 10 मेंबर्स है they are being rotating. Okay, rotating, and they one is changing, another is coming, another is changing, another is coming. But जो 5 permanent members है they are not changing. Okay, ये permanent है, so they won't change only. तो वो कौन सा है, they are US, UK, Russia, France and China. Now many of the experts are telling that this membership should be changed. Okay, मतलब इसको और भी थोड़ा expand करना चाहिए और भी थोड़ा ग्रोथ करना चाहिए. ओके, सो दिस 15 मेंबर्स जो है 5 परमानेंट से थोड़ा और इंक्रीज होना चाहिए, और जो 10 है उससे भी थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए. ओके, और उसमें बहुत सारे लोगों का ये मानना है, क्योंकि जो ऑलरेडी है वहाँ पे मेंबरशिप, जो 5 जो मेंबर्स, दे आर ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग कंट्रीज. तो अभी बहुत सारा और भी, जैसे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और फिर जिसको हम लीस्ट डेवलप कंट्रीज बोलते हैं, जो लीस्ट डेवलपमेंट था कभी, अभी बहुत सारा as time has been went up, and these countries has also started developing. Okay, they also must get a chance in this UN Security Council membership. Okay, so increase in membership from Asia, Africa and Latin America. तो Latin America, Africa और एशियन एरिया से भी और मेंबरशिप आना चाहिए, मेनली इन दी परमानेंट एरिया. ओके, तो यहाँ पे देखा जाता है इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर of this permanent membership in the UN Security Council. ठीक है. अच्छा, उसके बाद improvement in UN's budgetary procedures and its administration. तो UN का जो budgetary procedure है, okay, that should be changed. Maybe it should be balanced way, और क्योंकि we all know that today UN is the highest contributor. Okay, तो US is the highest contributor in UN budgetary area. तो उसका जो बजटरी जो सेक्शन है उसको कैसा डिवाइड किया गया, इट वाज फिक्स्ड अप इन रेशियो एज कंट्रीज इकोनॉमी इज डेवलपिंग, उसका रेशियो भी फिक्स करके रखा है. ओके, सबका रेशियो सेम नहीं है. आप अगर चार्ट को देखोगे, यूएन का जो चार्ट है बजटरी प्रोसेस, द सेम, इट इज नॉट सेम. ओके, यूएस इज द हाईएस्ट, उसके बाद डिफरेंट जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसके बाद डेवलपिंग कंट्री है, और तो धीरे धीरे उसको जो रेशियो है वो डिफरेंट वेरिएशन में वो आ रहा है. तो सबका सेम नहीं है, क्योंकि सबका ऑब्वियसली सेम नहीं होगा, बिकॉज एवरी कंट्रीज इकोनॉमी इज नॉट सेम. ओके, तो दैट शुड बी चेंज. और यहाँ पे देखा गया कि यूएन का जो बजटरी जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि यूएन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो बहुत टाइम दे आर मोनोपोलाइजिंग दी UN एरिया. ओके, UN एरिया, UN क्षेत्र में बहुत सारा जगह पे दे आर यूजिंग वेटो पावर, दे आर मोनोपोलाइजिंग दैट UN स्ट्रक्चर को लोग मोनोपोलाइज कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर इन दी UN. ओके, तो दैट शुड बी चेंज, और कुछ ऐसा बैलेंस होना चाहिए, एवरीबॉडी शुड बी इक्वलाइज्ड. ओके, सो दैट इज द 3 रिफॉर्म, जो बहुत बड़ा सा 3 रिफॉर्म के बारे में बोला गया. these आर द 3 थिंग्स. ओके, जो एक्सपर्ट ने एनालाइज किया है. Next one,
मैंने लिखा जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन। अभी यूएन को क्या रोल प्ले करना चाहिए? अगेन सम ऑफ द एक्सपर्ट्स दे हैव एनालाइज्ड दैट व्हाट रोल शुड प्ले बाय द यूएन। तो यहाँ पे सम लोगों ने कुछ बोला और फिर अदर लोगों ने और कुछ बोला। ओके, तो सम पीपल दे हैव सेड दैट यूएन शुड प्ले ग्रेटर रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी। तो इन पीस एंड सिक्योरिटी मेजर्स में यूएन को बहुत बड़ा सा रोल प्ले करना चाहिए। ओके, दे शुड नॉट गो इन अदर एरिया, और इनको सिर्फ सिक्योरिटी और जो पीस सेक्टर जो है, मेंटेनेंस ऑफ पीस, सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना, टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड। डिफरेंट कंट्री के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। ओके, इंटरनल वार्स होता है, सिविल वार्स होता है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। तो ये सब कुछ थोड़ा सा जो डिक्रीज करना चाहिए उनको। ओके, और उनका मेजर रोल सिक्योरिटी और मेंटेनेंस ऑफ पीस में जाना चाहिए उसका। Again, some other experts they have also analyzed something else. तो वो कौन सा था? Others want UN to play role in development and humanitarian work. तो डेवलपमेंट सेक्टर में भी यूएन का बहुत सारा रोल प्ले कर रहा है यूएन अभी। तो मेनी ऑफ द एक्सपर्ट दे वांट दैट यूएन शुड नॉट गो फॉर ओनली पीस एंड सिक्योरिटी, और इनको यहाँ पे जाना नहीं चाहिए। दे शुड गो फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस। बहुत सारा जगह पे यूएन फंडिंग करता है। ओके, तो बहुत सारा वर्ल्ड बैंक के थ्रू या फिर यूएन का बजटरी प्रोसेस जो है उनके थ्रू दे ऑल्सो गो फॉर फंडिंग। ओके, बहुत सारा जगह जैसे कि रिलीफ देता है यूएन चिल्ड्रंस को। यूनिसेफ जो है उनका जो स्पेशलाइज जो एजेंसी है यूनिसेफ के थ्रू यूएन दे रीच टू द पीपल, रीच टू द चिल्ड्रंस, पोर चिल्ड्रन जिनके पास किताब नहीं है पढ़ाई के लिए, जो एक उनका जो जरिया नहीं है, दे रीच दोस एरिया, दोस पीपल, दोस चिल्ड्रन। Again, अगर if there is some of the major disasters in the world, so they also give relief to those area, to those people. Okay, again in infrastructural development, agricultural development, they various types of developmental sector में भी UN अपना जो है वर्क जो करते जा रहा है। ओके, और फिर देखा गया है कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क में ले लो, एक हो सकता है ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम। तो मैंने जो अभी आपको बोला थोड़ा आगे, तो बहुत सारा जगह में बहुत सारे जब लोग मरते हैं, बहुत सारा जगह में जब बहुत सारा लोगों का जो टॉर्चर होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है बिकॉज ऑफ मेनी अदर प्रॉब्लम्स। ओके, दे आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड, दे आर बीइंग टॉर्चर्ड, दे आर बीइंग मैसेकर्ड। ओके, सो इन दोज सेक्टर्स आल्सो यूएन शुड प्ले मोर ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन रोल देन मेंटेनिंग ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। सो ये भी वेरिएशन है, दो तरह का एक्सपर्ट्स ने दो चीजों के बारे में बोला है। ओके, पीस सिक्योरिटी या फिर ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल वर्क्स। तो एक्चुअली देखा जाता है, अभी हम लोग अगर उसका सामारी निकाल लेंगे तो देखा जाता है यूएन इज डूइंग दी बोथ वर्क। दोनों का एरिया का वर्क यूएन करते जा रहा है। ओके, मे बी समटाइम्स नॉट सक्सेसफुल, बट अदर टाइम्स दे आर सक्सेसफुल, दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क्स। ओके, तो दिस इज सम ऑफ द थिंग्स दैट हैज बीन सेड बाय द एक्सपर्ट्स। अच्छा, ये तो हो गया थोड़ा सा जो उन लोगों ने बोला। ओके, डिफरेंट थिंग। अभी हम और एक क्षेत्र में जाते हैं, और एक एरिया में जाते हैं और देखते हैं कि यूएन का जो स्ट्रक्चर या फिर इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज हुआ आफ्टर द कोल्ड वॉर। ओके, तो लेट्स गो चेंजेस आफ्टर कोल्ड वॉर। तो यहाँ पे देखो व्हाट हैपेंड, कोल्ड वॉर के बाद में क्या क्या आया। सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड। ओके, वी ऑल नो 1991 सोवियत यूनियन disintegrated. US remain only superpower because as one superpower collapsed, automatically one superpower remained. So we all know that bipolarism ended, and today we are living in unipolar world, and that is the US emerged as the strongest superpower till today, with its military power, with its economic power, with its cultural power. हमने देखा already ये सब कुछ। Okay, so this is the thing that is going on in the world. Okay, next, relationship between US and Russia has improved. Obviously it will improve because earlier the old USSR was a purely communist country. Okay, after 1991 we all know that the new Russia जब it transformed from USSR to Russia ने place ले लिया है, अपना जगह ले लिया, then Russia has been going on through the process of capitalism. Okay, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को उन्होंने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, और यूएस तो ऑलरेडी था ही कैपिटलिस्ट
एरिया में। तो कैपिटलिज्म प्लस डेमोक्रेटिक पॉलिसीज प्लस लिबरल पॉलिसीज, ये सब कुछ जो कॉम्बिनेशन जो यूएस पॉलिसी फॉलो करते जा रहा था राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, तो राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन बोलने के टाइम में हम बोल सकते हैं कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, तो वो सब टाइम में जब वो चलते जा रहा था, दैट वाज नॉट अप्लाइड बाय यूएसएसआर दैट टाइम। ओके, एंड मेनी पीपल हैव थॉट दैट ये अगर अप्लाई होता तो यूएसएसआर शायद फॉल नहीं करता। ओके, सो दैट थिंग हैज बीन applied. 1991 बोरिस येल्सिन has went up and transformed the whole of Russia, और जो भी था वहाँ पे पूरा स्टेट्स पूरा कंट्री को उन्होंने क्या पे ट्रांसफॉर्म कर दिया टू द कैपिटलिस्ट और प्राइवेटाइजेशन एरिया। ओके, सो ऑटोमेटिकली देयर रिलेशनशिप हैज इम्प्रूव, क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री, सो आगे का जो उनका जो एक तनाव था, एक टेंशन था, एक कॉन्फ्लिक्ट था, जो कोल्ड वॉर का एक जो चल रहा था उनका जो प्रोसेस जो वो सब कुछ खत्म हो गया। एंड नाउ ए न्यू रिलेशनशिप बीइंग इमर्ज्ड एंड इम्प्रूव बिटवीन यूएस एंड रशिया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज चाइना एंड इंडिया इमर्जिंग एज ग्रेट पावर। तो हम देखते हैं कि और एक जगह जहाँ पे इंडिया एंड चाइना, ओके, टू आर एशियन कंट्रीज फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट दे बिलोंग, एंड दोनों ने अपने आप डेवलप करना स्टार्ट किया। चाइना तो स्ट्रॉन्ग था ही था, अभी इंडिया रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड डेवलपिंग देमसेल्व्स। ओके, इकोनॉमिकली वास्ट पावर एंड बोथ आर न्यूक्लियर वेपन कंट्री, तो दे हैव इम्प्रूव देमसेल्व्स एंड स्टार्टेड डेवलपिंग मोर एंड मोर। ठीक है, नेक्स्ट और पे मेनी न्यू कंट्रीज जॉइंड यूएन। आपको अगर याद है स्टूडेंट्स, तो बहुत सारा न्यू कंट्रीज हैज इमर्ज्ड। ओके, फ्रॉम old USSR many countries has being separated. Okay, 15 countries broke up, 15 states broke up, and from 15 states many states emerged, and from the second world देखा जाता है बहुत सारा states निकल के आ रहे हैं। These many states have joined up UN, क्योंकि UN का जो initial membership कितना था 51 only, and today we are having 193 membership. तो many countries recently और धीरे धीरे from that time being joining up the UN. Okay, because they all know UN is the largest intergovernmental organization. So to get some benefit to live in a safer zone, UN may be a necessary one. Okay, next one is world facing new challenges. Okay, और एक चैलेंज आ गया कि अभी आगे बहुत सारा चीज जो दिखाई नहीं देता था वर्ल्ड में, अभी वो चीज दिखाई देने लगा है। अभी ये चैलेंजेस क्या है? मास किलिंग, बहुत सारे जगह पे मास किलिंग, जैसे कि हमने देखा म्यांमार लास्ट ईयर, म्यांमार रोहिंग्यास, देन इजराइल पैलेस्टाइन जो अभी हाल ही में हुआ है। ओके, सो मेनी पीपल वर बीइंग किल्ड, तो ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो मेनी पीपल यूज्ड टू बीइंग किल्ड। ओके, वन ग्रुप किल्स अनदर ग्रुप, ये सब कुछ मास किलिंग होते जा रहा है। देन सिविल वार वेरियस जगह पे सिविल वार्स देखा जा रहा है। देन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो हम देखते जा रहे हैं। ओके, तो इजराइल पैलेस्टाइन एंड ऑल दिस, ये सब सिविल वार भी बोल सकते हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के दायरे में भी हम इसको ढाल सकते हैं। ओके, दिस इश्यूज आर गोइंग ऑन इन द कंट्री। ओके, स्टिल नाउ नेक्स्ट वन इज टेररिज्म इशू। वी ऑल नो टेररिज्म इशू। टेररिज्म जो धीरे धीरे अभी थोड़ा सा धीमा चल रहा है, अभी उनका स्लो पेस में चल रहे हैं अभी लोग, बट दे आर स्टिल देयर, दे आर स्टिल एक्टिव। और वी हैव सीन ऑलरेडी कि बहुत सारे जगह में उन्होंने विनाश किया है। और दी 9/11 अटैक हमने देखा, हाउ दे हैव डिस्ट्रॉयड वन ऑफ द मेजर ट्विन टावर सेंटर ऑफ यूएस। ओके, नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज, इतना गर्मी। ओके, ग्लोबल वार्मिंग, टुडे एवरीथिंग द स्नो इज मेल्टिंग, तो हम ये सब कुछ के बारे में जानते हैं। तो क्लाइमेट इज चेंजिंग, ये भी एक बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये भी एक प्रॉब्लम है। डिफरेंट जगह में मैंने बोला ना डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ओके, एंड एपिडेमिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एपिडेमिक्स, अगर आप मैं कौन सा एपिडेमिक्स के नाम लूँ तो रिसेंटली वाला कौन सा लूँ मैं? कोरोना वायरस। ओके, तो हम सबको पता है हाउ कोरोना वायरस हैज अफेक्टेड आवर लाइफ, आवर स्टडीज, आवर लाइफ, एवरी सेक्टर को पूरी एकदम जंक लगा के रख दिया कोरोना वायरस ने। ओके, तो बहुत सारा चीज़ों के कारण ये सब कुछ हो रहा है, बहुत सारा चीज़ हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम देखा जा रहा है। ओके, तो ये जो चैलेंजेस
these things were not seen before. So recently those challenges came in the world. So UN has to work not only for peace and security, but also to solve out all those issues which have been there, which have been visualized in the world today. ओके जो APR हुआ है अभी वर्ल्ड में. तो UN is a largest intergovernmental organization, no doubt. Reforms are necessary in the UN sector, no doubt, and UN should work for betterment of the people. Okay, no doubt. So UN has to be there and UN should work for a क्या बोल सकते हैं होल प्रोसेस, होल जो पूरा पूरी इंटरनेशनल एरिना है उसके लिए वो उनको काम आगे बढ़ के और भी करना चाहिए. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज दैट वी हैव टेकन अप टुडे. होप स्टूडेंट दैट यू हैव got through it and you can understand if you go through it more nicely. Okay, so maybe that is a good one that I have given up. So just study it, just see it, and on the next video we will again share up some of the more areas of the UN chapter. Okay, thank you students.